सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ डेट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और आपको सभी को पता है कि यार आर्सेनल इज टॉप ऑफ द टेबल और हमारी लिवरपूल के नेक्स्ट मैच आर्सेनल के साथ होने वाली है। तो इसीलिए मैंने राहुल भाई से बोला, स्पोर्ट्स खबरी से, राहुल भाई ही इज आर्सेनल फैन, सो उनको ही बुला के लाए हैं इस बहुत ही बड़े फिक्सचर के बारे में बात करने के लिए, उसका प्रीव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले तो राहुल भाई कैसे हो, वेलकम टू द चैनल, और कैसा फील कर रहा है टॉप ऑफ द टेबल होने का? Thanks, Darshan. Thanks so much for calling me and having me here. Feeling good so far. It's been an interesting season because it's been very close. We saw Spurs at the top first in the first Yeah. half of the season. Then Liverpool and Arsenal have slowly battled it out. Manchester City have fallen off. They've got one win in their last six matches. So it's been interesting and it's been a lot of fun. I'm just looking forward to this big match between Arsenal and Liverpool because a lot will decide. And weirdly, for both the clubs, if Arsenal and Liverpool play out a draw, Aston Villa win, they go on top. So yeah, बिल्कुल crazy. So it's been a crazy season. बिल्कुल, इवन आस्टन विला हैज अ फेयर शाउट टू गो ऑन टॉप। अगर हम, जैसे आपने बोला कि इफ वी मैनेज टू ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट ईच अदर और ड्रॉ होता है तो आस्टन विला भी टॉप पे जा सकता है। सो Exactly. बहुत ही, अभी तक तो बहुत ही अच्छा सीजन रहा है। सो सबसे पहले तो क्या लगता है इस मैच के बारे में, क्योंकि अभी जो बिल्डअप हो रहा है, क्लॉप जस्ट मेड अ स्टेटमेंट लास्ट नाइट दैट एनफील्ड एटमॉस्फेयर के बारे में, कि भाई Yeah. क्लॉप को लगा कि उतनी ही अच्छी एटमॉस्फेयर नहीं थी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम एज वेल एज वेस्ट हैम गेम जो हमने ईएफएल कप में खेली, 5-1 हम जीते उसमें। सो ही जस्ट मेड द पॉइंट कि भाई वी नीड full support of Anfield. If you are not willing to give your 100%, give ticket to someone who are passionate enough to give their 100%. Correct. So वो स्टेटमेंट के बाद बहुत ही ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि यार, Yeah. और ऑफ कोर्स बहुत सारे आर्सेनल फैन नहीं, मगर कुछ कुछ आर्सेनल फैन ये भी कह रहे हैं कि यार अ, एक दो सीजन में क्या वक्त बदल गया। पहले हम डरते थे एटमॉस्फेयर से, अभी उनको जरूरत पड़ गई है एटमॉस्फेयर की। सो I think I'll just say one thing before answer this question. I think I'm still scared of Anfield. As an Arsenal fan, I don't think any football fan or any football club likes going to Anfield. It's a scary place for a club because the fans are that loud and they're always there. I know Klopp has said this, but I still think it's Arsenal Liverpool. People, the fans, I think will make the noise, and it will be a daunting task for Arsenal. And to be honest, whenever Arsenal have gone to Anfield, I think it's the only club last season, I think for a while that we haven't won it. Anfield and Etihad, we haven't won for a while. So, yeah, it's always been a tough place for Arsenal. And regardless of Klopp's statements, honestly, I'm still worried going to Anfield because it's always a tough place to go to. हाँ, फेयर इनफ। Yeah. अगर मैं बात करूँ फिक्सचर के बारे में, वी आर, आप कह लो कि आप फर्स्ट है, सेकंड है, एक पॉइंट का गैप है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम। जिस तरह से आर्सेनल का सीजन गया है, आपको क्या लगता है कि कौन सी बैटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगेंस्ट लिवरपूल टू गेट दैट 3 पॉइंट्स, और आप अपना टॉप पे जो पोजीशन है उसको ज्यादा सीमेंटेड कर सको? आपको क्या लगता है? For me, from an Arsenal perspective, I'll say it's actually the wingers and the wide positions because when whatever I've seen so far, whenever Arsenal have not done well, it's because Saka hasn't done well against the left back and probably Martinelli against the right back. So I think Martinelli will enjoy his day getting against Trent. If Trent gets ahead, if he starts pushing ahead like he likes doing, Martinelli will probably end up winning that battle. Hopefully, same with Saka. So I want the wingers. I think for me, from an Arsenal perspective, is going to be a key battle. What about for you from Liverpool perspective? आपको क्या लग रहा है कि where are you guys going to win the game? एक्चुअली मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। आई थिंक मिडफील्ड विल बी द बैटल, क्योंकि Okay. अगर आपने लिवरपूल की भी थोड़ी मैचें देखी होगी इस सीजन, तो वी आर क्वाइट लैकिंग दैट कंसिस्टेंट मिडफील्ड। आप देखो, मैकलिस्टर को इंजरी हो रही, या फिर उससे पहले वो सस्पेंड हुआ था फॉर द रेड कार्ड। सो वो एक कंसिस्टेंट मिडफील्ड नहीं मिल रही, और उसकी वजह से जो यूजुअली हम डोमिनेट करते थे पहले के सीजनों में, व्हेन वी हैड फेमस ब्रेक्सिट मिडफील्ड ऑफ हेंडरसन, मिलनर एंड वाइनाल्डम, Yeah. जो हम डोमिनेट करते थे मिडफील्ड को, वैसा अभी नहीं हो रहा। क्योंकि
अगेन सभी लोग नए हैं, आप इवन सोबोज़लाई की बात कर लो, एंडो की बात कर लो, कर्टिस जोन्स की बात कर लो, सभी लोग उतने ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं है उस उन उन एक-दूसरे की गेम से। सो इसलिए मुझे लगता है कि सामने आपकी जो मिडफ़ील्ड है, डेक्लन राइस, ओडेगार्ड एंड काई हावर्ट्स, आई थिंक दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। लोग भले ही काई हावर्ट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे और फाइनली अ, अभी वो क्वेश्चन कम हो रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 मैचों से कुछ आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया। मगर मुझे तो लगता ही था कि ही विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल। क्योंकि आप Yeah. देखो आपके पास 2 ऐसे मिडफील्डर है इन फॉर्म ऑफ डेक्लन राइस एंड ओडेगार्ड, वो दोनों कम आप कह लो कि जो टेम्पो है ना गेम का वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो पासिस को मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिस को शट कर सकते हैं। डेक्लन राइस तो डिस्ट्रॉय एज अ डिस्ट्रॉयर भी कर सकता है। सो आपको एक अटैकिंग प्लेयर चाहिए ही था जो तो वो काई हैवर्ट्स वो रोल कर सकता है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि वही बैटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। Yeah. हमारे क्लब में अभी बहुत इंजरी है राहुल। आप देखो थियागो नहीं है, बाजेटिक नहीं है, अगेन मैकलिस्टर नहीं है, ग्रेवनबर्च को भी लास्ट मैच में थोड़ी आप कह Yeah. लो कि एक नॉक हो गया था। सो जोटा आउट है। आपके लिए Yeah. गुड न्यूज़ है कि जोटा आउट Really है। good news. मेरे Really लिए good news. Um, yeah. तो For अ, yeah. अब अभी तो कोई अब हमारे ओर से ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कमबैक करेगा। मुझे लगता है ये सभी लोग एब्सेंट होंगे। आपके कोई इंजरी अपडेट ऐसा कुछ अभी तक आया हो? Not nobody will return. So the injury list is fairly big at Arsenal as well. Fabio Vieira, Thomas Partey, Julian Timber, all of these guys injured will remain injured. I mean, will be out of action. So will Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu is out, I think, till mid Jan February time. Jorginho again, yeah. Not too sure about Jorginho's inclusion. I haven't read up about it, but yeah, it's going to be interesting. But largely the same squad. So, but the starting 11 from the last few weeks will not change. I think for Arsenal, it's going to be the same. You're going to see the same players because now it's working, and I think Mikel Arteta will stick with that. But these are the 4-5 players who will not be there for sure. बिल्कुल, बिल्कुल। Emil Smith सो Rowe is back for again, like for any Arsenal fan. Smith Rowe got a few minutes last in the last game against Brighton. So Smith Rowe हाँ, is back. बिल्कुल, That's the बिल्कुल। only major one. वो ब्राइटन वाली मैच मैंने देखी थी। अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। आई Yeah. थिंक यू शुड हैव स्कोर्ड मोर। मुझे तो लगता है कि 3-4 भी हो सकते थे वहां पे। Yeah. मगर अगेन आप कह लो कि ओडिगार्ड कई थोड़ी बर्थडे वाली फीलिंग थी कि भाई मैं ही शॉट करूं, मैं ही शॉट लूं। सो इसीलिए हो सकता है। मगर बहुत ही डोमिनेंट डिस्प्ले अगेंस्ट ब्राइटन। और Yeah. अगर आप अपनी स्टार्टिंग लाइन अभी आपने बोला कि बहुत चेंज नहीं होंगे, मगर स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी आप बता दो, आपको क्या It's, लगता है? so it's going to be the same, I think. David Raya starts in goal. Right back, Ben White, Saliba, and Gabriel will be your centre backs. Left side, Alexander Zinchenko, because there is no Tomiyasu. Your midfield three will be Declan Rice, Kai Havertz, and Martin Odegaard. On the left, you've got Gabriel Martinelli. On the right, you've got Bukayo Saka, and down the middle is Gabriel Jesus. So it's straightforward. No changes at all from what I think Arteta will make. It's a big match, and he's got to play his best 11. I think this is Arsenal's best 11. So Darshan, what do you राहुल, think? Yeah, मुझे yeah, क्या लगता है ना, जब भी किसी फैन की लाइनअप एकदम कंफर्म हो ना, जैसे आपकी है कि यार यही होगी ना, वो आपके बेस्ट डे होते हैं। मतलब कि आपको पता है कि यही होने वाला है। that's true. हमारे That's में true. अभी कुछ कंफर्म नहीं है। पीपल आर आर्ग्यूइंग वेदर वी शुड स्टार्ट डार्विन नूनीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कल की जो Hmm. उसकी परफॉर्मेंस थी लेफ्ट विंग पे, और उससे पहले भी पिछले सीजन में लेफ्ट विंग पे वो ज्यादा आउटपुट दिया है। तो पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग कि वेदर वी शुड ड्रॉप लुइस डियाज और नॉट। सो वो भी एक अभी क्वेश्चन बना है। मुझे क्या लगता है कि ऑफ कोर्स Huh. एलिसन विल स्टार्ट इन गोल, ट्रेंट होगा, कोनाटे, वैन डाइक एंड सिमिकास। Correct. मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो अगेन देयर आर क्वेश्चन मार्क्स ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेवनबर्च एंड मैकलिस्टर। दे कुड फीचर बट आई एम अज्यूमिंग दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सो आई एम Okay. गोइंग विथ एंडो एज अ नंबर 6, Sobozlai and Curtis Jones as a two number 8s, Mohamed Salah, Cody Gakpo and Darwin Núñez on left hand side. Okay. Interesting. So I'm Interesting. dropping Luis Diaz. Okay. But So do you think Cody Gakpo has done enough for him to start tomorrow's match?
I think uh, Okay. again the this season it it been unfair in my opinion to Cody Gapco, Okay. because the number of game or minutes he has ना is very limited due to आप कह लो कि जिस तरह से डार्विन नुनेस ने वो न्यू कासल में 2 गोल मार के जिताया था, उसके बाद उसकी गेम बहुत ही लिमिटेड हो गई। यूजुअली ही कम्स और ऑन ऑफ द बेंच, आप 60-65 के बाद ही वो आता है। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉन्ग रन इन टीम। अभी जोटा भी नहीं है, और लोग क्वेश्चन डार्विन नुनेस पे उठा रहे थे। अभी तक 5 मैचों में बहुत ज्यादा गोल नहीं आए हैं हमारे, इसीलिए। मगर प्रॉब्लम हैज बिन लुइस डियास, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन, Okay. क्योंकि ही हैज बिन वेरी प्रिडिक्टेबल। आप देखो, आपको भी शायद पता चल गया हो अभी तक Yeah. कि वो यूजुअली क्या करता है, ही टेक्स द बॉल, ही मेक अ गुड रन टुवर्ड्स द ओपोनेंट बॉक्स। उसके बाद जब बॉक्स पे आ जाता है ना, वो ड्रिफ्ट इनसाइड करता है एज ए मिडफील्डर। Yeah. तो ही एंड ग्रेवनबर्च या फिर जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मिडफील्डर होता है ना, वो दोनों एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। सो Yeah. जो वाइड स्पेस आगे वाली रहती है, वो आप कह लो कि आपके राइट बैक को या फिर सामने वाली टीम के राइट बैक को पता ही है कि यहाँ पे कोई बॉल आने नहीं वाला, हमको कट इनसाइड ही करने वाला है ये बंदा, आप उसके साथ जाओ। सो Hmm. बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गया था हमारा गेम, मुझे ऐसा Fair लगता enough. Fair है। enough. Fair enough. अगर आपकी बात करूं यार, विंगर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, साका, Yeah. मार्टिनेली। Yeah. इवन दो मार्टिनेली के उतने गोल नहीं आए, आप ऐसा कह सकते हो, मगर हर एक सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है। उस पे क्या Exactly. बोलोगे आप? So I think Martinelli, one thing that people take for granted is his ability to go down the line, हाँ, opposed to many other wingers who like going inside and going into the box. Martinelli goes on the outside and he likes crossing with his left foot, and he does it बिल्कुल। very well. For like people who haven't noticed, because this is something that has impressed me a lot with him. He's very important because Saka doesn't do that much on the other side. He doesn't go outside. He likes coming inside. He won't go outside and cross as many times as Martin. But Martinelli, every single time, he'll run and he'll run on the outside and cross it with his left foot. So I think that I love about Martinelli, and he has just so many chances he creates from that left hand side. It's crazy. Sometimes he does more than Saka, I feel. But Saka's goal output, of course, that quality he has a little extra. So he gets goal output is more, and his goal contribution output is more. So that's. ट्रू। But yeah, we both wingers doing well. Yeah. हाँ, and few words on Declan Rice, because in my opinion Declan Rice is a signing of a season for Premier League। अगर आप Premier League की बात करो, I don't think anyone has a better signing than Declan Rice। You can argue Pau Torres is having very good season as a defender in Aston Villa team। Yeah. Again Diaby, another South। You can argue Madison has a great start at Spurs, मगर उसको भी इंजरी हो गई। Szoboszlai also had a good start at Liverpool, मगर डेक्लन राइस कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है इन दिस आर्सेनल साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी मुझे ऐसा लग रहा है, पिछले सीजन क्या हुआ था राहुल, मुझे लगता था कि यू लैक समथिंग, योर टीम लैक समथिंग, वेदर इट इज पार्टे खेल रहा हो या फिर जॉर्जिनियो खेल रहा हो, जाका पहले खेलता था, तभी भी मुझे लगता था यू नीड अनदर मिडफील्डर वो कॉम्प्लीमेंट ओडिगार्ड। अभी आपको वो एक कंप्लीट यूनिट लग रहा है। इवन आप बेंच देख लो कि काई हैवर्ट्स नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप ट्रोसार्ड को ला सकते हो, Yeah, ईएसआर exactly. को ला सकते हो। सो यू हैव दैट कंप्लीट सेट इन मिडफील्ड नाउ। Yeah. So again on Declan Rice, so I started watching Arsenal in 2013. Till now, he's the best player I've seen for Arsenal, easily. This not in terms of like football finesse. Mesut Ozil is my favorite player of all time, but the consistency Declan Rice brings every week, I have बिल्कुल। never seen it. I have never seen it in my 10 years of following Arsenal. Never. We've had great players. Alexis Sanchez was brilliant for a period, but no player has given 8 out of 10 every match like Declan ट्रू Rice. Like ट्रू। every game, he can drive with the ball, he can break up play, he can make a pass, he can score goals. What do you want from a mid? What more can you ask from a midfielder? So for बिल्कुल, me, इज अ yeah, कंप्लीट पैकेज। exactly. So for me, he's the signing of the season in the Premier League, and I think he's also Arsenal's best signing ever since I started watching. So since 2013, I think he's been Arsenal's best signing
ever. So yeah, he's just बिल्कुल। brilliant. I आई थिंक Yeah, जो 100 मिलियन का टैग था ना, पहले क्वेश्चन थे कि यार 100 मिलियन, आई थिंक इट इज अ, अभी मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे समय पे हुआ था, पीपल वर क्वेश्चनिंग 75 मिलियन ऑफ वर्जिल वैन डाइक, मगर इवेंचुअली आपको सभी को पता चल जाता है कि यार ये वर्थ करता था बंदा। सेम exactly. चीज अभी से मुझे लग रही है कि डेक्लन राइस अ वेरी गुड साइनिंग, भले ही 100 मिलियन, मगर सब कुछ वो जो पिच पे ऑफर करता है वो डिजर्व करता है। I, सो I I actually want to ask you a question. Somebody I was very impressed with in the first few weeks because he did a lot of the things Declan Rice did. Was Dominic Szoboszlai, in terms of he had that raw pace, he could drive the ball, powerful in midfield. Uh, does it feel like he's dropped off recently, or what is it? Because I don't know. I'm not a Liverpool fan, so I don't watch him every week. But it's somebody I really liked when I saw Dominic Szoboszlai for the first few games. What do you think about him? बिल्कुल, बिल्कुल। Rahul, I think everyone has a same feeling right now in Liverpool also. If you ask any Liverpool fan right now, they will agree that yeah, Szoboszlai had started very well, and last few matches, especially last 4 matches, he uh, didn't give same kind of performance. We are not talking about goals, assist, the passes he usually puts, Yeah, मगर जो एनर्जी लेवल दिखती है ना, वो भी correct, correct. पिछली 3 मैचों में कम लगी थी। कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था बाय द वे, सुबोजलैंड बहुत ही अच्छा था। अगेन उसकी एक इशू, उसका एक रीजन हो सकता है कि हंगरी के लिए वो बहुत ज्यादा खेला ड्यूरिंग Huh. इंटरनेशनल ब्रेक में भी, 90 मिनट्स फॉर हिज नेशनल टीम बिकॉज ही वॉज द कैप्टन। सेम लिवरपूल में भी 90 मिनट्स, अगेन प्लेइंग कंसिस्टेंट 90 मिनट्स अंडर क्लॉप इज एक्स्ट्रा। आप बोलो कि भाई Excellent. जान चली जाएगी आपकी, और ये तो अभी इसी साल आया है, अभी इंटीग्रेट हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार थोड़ा वो ऑफ लगा। अगेन मैं उसको एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि यार बहुत ज्यादा खेला, मगर आई थिंक ग्रेवनबर्च को इंक्लूड करना वो भी थोड़ा उसके गेम को अफेक्ट किया, क्योंकि ग्रेवनबर्च यूजुअली डोंट ट्रैक बैक दैट मच जितना आप कभी कभी जो कर्टिस जोन्स करता है, कभी हार्वी एलियट को खिलाते हो तब करता है, तो उस पे भी उसका थोड़ा असर हुआ है। सो Okay. मल्टीपल रीजंस मेरे, मगर मैं अग्री करूंगा कि हाँ उसका परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हुआ था। होपफुली आर्सेनल के सामने Yes, अच्छा करे। सो fair enough. फाइनली हम प्रिडिक्शन पे जाते हैं, क्या लगता है राहुल यार कि टॉप पे बने रहेंगे आप? So the thing for me is, I heard a lot of Arsenal fans saying it's okay if it's a draw, but for me, I think if Arsenal have to get that confidence to win the league, we need to win at Anfield. And if we win at Anfield, that will give you that confidence to push on and win the title. Something that didn't happen last year. We drew at Anfield, drew 2 games after that against West Ham, Southampton, lost to City, and then boom, bye. So this season, I hope we win at Anfield. For me, this side is looking good. I think Arsenal played their best game last week against Brighton, so that gives me a lot of confidence because we weren't playing that fluent attacking football until last match. So I think, अगेन yeah. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। No, 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 no. I was just saying it's the best attacking sort of performance I've seen from Arsenal. It came last game, and I like it. So I'm going to go with with a 2-1 Arsenal win. 2-1 आर्सेनल Yeah, विन। मुझे भी क्या लगता है कि आर्सेनल हैव एन एडवांटेज इवन दो गेम इज एट एनफील्ड। मुझे क्या लगता है, हमने ये मिड वीक की फिक्सचर खेली है, अभी वेस्ट हैम के सामने खेले। correct. आई थिंक यूजुअली जो रिकवरी टाइम चाहिए होता है वो एक फैक्टर बनेगा, मगर मैं यहाँ पे अपनी टीम को बैक करूंगा। आई थिंक Yeah, देर आर इनफ गुड रीजंस इन लास्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम व्हेन वी स्कोर्ड 5 गोल्स, वी टुक आई डोंट नो 60 शॉट्स, मतलब yeah. 30 के अराउंड तो 30 देखे ही थे, मगर बहुत yeah, ज्यादा शॉट लिए भाई, बहुत ही yeah. शॉट लिए, 5 गोल स्कोर किए। सो And 2 games मैं in a row. कॉन्फिडेंट हूँ कि 2 games in a होपफुली row, हम, 30 points. सॉरी, Liverpool against United also 30 plus shots. So हाँ obviously, उसमें 36 शॉट लिए थे, 8 ऑन टारगेट, मगर गोल नहीं किया भाई, वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। आई जस्ट वांट टू फॉरगेट yeah, उसको भाई मिटा दो। आई थिंक होपफुली एक अच्छा परफॉर्मेंस, आई आई विल गो विथ 2-1 यहाँ पे, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि क्लॉप ने बोला है ना कि भाई थोड़ा बैकिंग चाहिए,
एनफील्ड टर्न अप करेगा, होपफुली इट विल गिव प्लेयर्स एक्स्ट्रा बूस्ट। और 2-1 के साथ मैं जाऊंगा। क्लीन शीट मुझे नहीं लगता वी विल कीप अ क्लीन शीट, इवन दो वी हैव एलिसन इन गोल, मुझे नहीं लगता कि क्लीन शीट रहेगी। सो 2-1 के साथ मैं जाऊंगा। Okay, fair सो जो भी अभी देख रहा है, प्लीज आप भी लिखिए अपना स्कोर कमेंट में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए यार, हम बहुत ही करीब है 2000 के। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। राहुल के इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डाल दूंगा। स्पोर्ट्स खबरी की चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उनके इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।